Hello students, myself Sakshi Varmani Rishi, HOD in BLMC College. This is my second video on guidance and counseling, paper code 214 from B.Ed 4th semester. In this video, I have taken these contents under Unit 1, Role of Guidance in Human Development and Adjustment, Need and Procedure for different types of guidance, educational, psychological and social guidance. Instructional objectives: to understand the importance of guidance for the development and adjustment of the individual in life, to familiarize the needs and procedures of educational, psychological, and social guidance. Now, what guidance is? You all are familiar with the word guidance, as I have also discussed in my first video of guidance. Guidance is the process of helping people. The literal meaning of guidance is what? To give direction, to show the path, on which path one has to move, one has to walk. Because बिना डायरेक्शन के, बिना गाइडेंस के आप अपनी लाइफ लीड नहीं कर पाते, वो भी बैलेंस्ड एंड पीसफुल लाइफ. अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेंगे, अगर आपकी लाइफ का कुछ एम नहीं है, तो योर लाइफ इज़ टोटली कंफ्यूज्ड. तो आपको आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आपको आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, आपकी लाइफ में स्मूथ कंडक्शन हो ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी, तो गाइडेंस इज रिक्वायर्ड इन दैट. In 1986, Taylor has given this thing that although the decision-making aspect of guidance has long played an important role in the counseling process, the concept itself as a word in counseling has gone the way of consumption in medicines. The two definitions I have taken for the for better understanding of the concept of guidance. One is from UNESCO. According to UNESCO, the objective of guidance is what? To place the individual in a position to know their personal characteristics, develop them for the selection of their studies and professional activities in all circumstances of their life, with the joint desire to be an asset in the development of society and self-fulfillment. According to Secondary Education Commission, guidance involves the difficult art of helping boys and girls to plan their own future wisely in the full light of all the factors that can be mastered about themselves and about the world in which they are to live and work. So, the conclusion came out from these definitions is that what guidance is basically, we need guidance to live our life peacefully. We need guidance in our for our professional life, for our personal life, for our educational life, for our social life. So guidance helps a lot in the development of human personality. What is the role of guidance in human development and adjustment? If we are talking about guidance, it plays a very important role in developing the personality of a human being and help in making the skill of adaptability, adjustment. Number one point is to help individual to realize his potential and to make use of it to construct better society by his own efforts as far as possible. Guidance also helps in solving our own problems, making proper choices, adjustment. It helps the individual to be physically as well as mentally strong. It helps the individual to live holistic and balanced life. You know, WHO has declared 7th April in 2017 as World Depression Day with a theme Let's Talk, because more and more youngsters are get depressed during the present time. Individuals get disturbed. Even the small children, जब हम उनसे भी बात करें तो वो कहते हैं they are in stress, they are in you know
डिप्रेशन मोड, उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने आने वाले फ्यूचर का डर है। उनको ये डर है कि नेक्स्ट 10th में जो स्टूडेंट है उसको ये डर है कि 11th में मैं कौन से सब्जेक्ट लूँगा जो मुझे राइट जो हम मेरा जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक ले जाएं। तो द कॉज ऑफ डिप्रेशन इज़ फैमिली कन्फ्लिक्ट, पीयर प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, stressed workplace. So it's a dire need of society that all these issues should be attended, handled by the guidance workers with proper care and sensitivity. Why this is required? Because कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो इसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल की होलिस्टिक लाइफ के लिए, बैलेंस्ड लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग की बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द टाइप्स ऑफ गाइडेंस: एजुकेशनल गाइडेंस, साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड सोशल गाइडेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड हाउ वी get educational guidance, what is the process. Same with psychological guidance and social guidance. Educational guidance is directly concerned with the pupil. It helps students to fulfill its aims as preparation of student for life and helping students to participate effectively in life. एजुकेशनल गाइडेंस क्यों ज़रूरी है? सी द डेफिनेशन ऑफ जॉन डेवी: एजुकेशन इज व्हाट, इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच अनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। तो एजुकेशनल गाइडेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस मिलता है तो आपको क्या सब्जेक्ट्स लेना है, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप वो सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, देन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। और एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प करता है आपको, अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, क्लासरूम एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, तो दिस टाइप ऑफ गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। What is the need of educational guidance? Educational guidance जो है it helps in the maximum development of the child. The overall development of the child आपको तभी हो पाती है when he or she gets proper educational guidance, because most of the time जो child का है वो स्कूल में निकलता है। हाँ, तो अगर वहाँ की जो प्रॉब्लम्स को वो कोप अप नहीं कर पाएगा, अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को वो कोप अप नहीं कर पाएगा, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी इम्बैलेंस हो जाएगी। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स में पहले भी आपको बता दिया कि आफ्टर 10th दिस इज़ द इशू ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड के 10th के बाद व्हाट सब्जेक्ट्स ही और शी शुड हैव टू टेक। अब उसमें क्या है कि साइंस स्ट्रीम में जाना है आपको, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़। लेकिन आपको तब तक नहीं पता लगता व्हेन you don't get any guidance from any expert, from the elders of your family, from teachers, etc. Checking of wastage and stagnation, because wastage and stagnation is the main one of the cause of जो हमारा हम UEE की बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हम चाहते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स हर बच्चे को मिले, तो कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द कॉज है वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन। अब इसे चेक करने के लिए एजुकेशनल गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। परफेक्ट एडजस्टमेंट इन स्कूल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, helping in future education with appropriate information, and educational guidance also minimize dropout rates. Educational guidance involves students in the process of self exploration for career opportunities, because आप जब से अपने आप से अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि आपने ये कोर्स पढ़ा है, आपने इस प्रोफेशनल कोर्स पे आए हैं, आपने एनरोल करवाया है, आगे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेल्फ एक्सप्लोर करिए ना आपको। और एजुकेशनल गाइडेंस आपको ये हेल्प सपोर्ट करता है टू एक्सप्लोर बाय योर ओन सेल्फ फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ वेरियस न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। Educational guidance also helps in maintaining discipline, also helps in organizing new co-curricular activities to release the pent up capabilities, emotions of the students. Educational guidance also check the progress in the studies, and the last and the most important is self knowledge for appraisal of self. This is very much required and educational guidance helps in this.
व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस? किसी भी चीज़ को करने का कोई ना कोई तरीका होता है, एंड दैट तरीका इज़ द प्रोसीजर, द प्रोसेस. There are two types of providing educational guidance. Number one is technique of individual guidance, and second one is technique of group guidance. अब individual guidance और group guidance में क्या फ़र्क है? Individual guidance means जब आप किसी एक बच्चे को educational sector में problem है, तो उसे फेस टू फेस उसके साथ बात की जाए, उसे प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाए. एंड ग्रुप गाइडेंस इज व्हेन यू ओरिएंट द होल ग्रुप अबाउट द process. So individual guidance is, in this method, guidance is given on one-to-one basis. Their individual problems are addressed related to physical, social, emotional traumas, and for this the following procedures are to be followed. Number one is face to face interaction. इन फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या होता है कि स्कूल में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, पेरेंट्स उसके आके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि काउंसलर से अपॉइंटमेंट चाहिए. जब अपॉइंटमेंट मिलता है तो काउंसलर सबसे पहले जो है वो बच्चे से बात करता है फेस टू फेस, उसकी प्रॉब्लम सुनता है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है स्कूल में, क्लास में, इनसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास. देन द काउंसलर टॉक टू देयर पेरेंट्स, देन द टीचर्स, और फिर वो एक सोल्यूशन पे आता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसके पीछे दीज आर द कॉजेज जो बच्चा वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड दिस इज द सोल्यूशन कि उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स. नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स? द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड in the whole annual year, including scholastic and co-scholastic records. स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाकर आप बच्चे का है उससे वो टेस्ट फिल करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर. आप उससे ये पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, देन पेरेंट्स से पूछते हैं. इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करते हैं. जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं देन यू कम टू द कंक्लूजन कि दिस इज़ द प्रॉब्लम चाइल्ड इज़ फेसिंग इन द स्कूल, दिस इज़ द कॉज, एंड दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर removing those causes. Next is group guidance. Now what group guidance is? It is that when you orient the whole group, इसमें कोई भी कोर्स स्टार्ट होने से पहले, वेदर इन स्कूल और इन कॉलेज, देयर इज सम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय द फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स. तो उसमें पूरा ईयर आपको क्या करना है उस कोर्स में, क्या बेनिफिट्स हैं उस कोर्स के, वो कोर्स आपको उसका आउटपुट क्या होगा, पूरा ओरिएंट किया जाता है उन ओरिएंटेशन टॉक्स में. देन साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है. एक क्लास को एक टेस्ट दे दिया जाता है, तो आप उस पे टेस्ट को भी जब लास्ट में एनालिसिस होता है तो पता लगता है कि इस क्लास में बच्चों को क्या प्रॉब्लम है. इंटरव्यू, डाटा कलेक्शन, कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट राइटिंग. कई बार ऐसा होता है हम भी अपनी क्लास में बच्चों से बात करते हैं, किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या लाइफ के किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर एजुकेशन, तो आप एक उस पर हमें एक रिपोर्ट लिख कर दीजिए कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो जब हम एनालाइज करते हैं उस रिपोर्ट राइटिंग को, तो वी कम टू द कंक्लूजन कि दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन देयर एजुकेशनल प्रोसेस. हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं टू ओरिएंट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो. Second is psychological guidance. Now what psychological guidance is? It is required to control behavioral problems. Some complex behaviors like shyness, cheating, lying, stealing needed assistance to eradicate the behavior, because all these issues, all these behavioral problems hamper the development of an individual up to the fullest extent. कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पे रोक लग जाती है ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स. इंक्रीजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, तो हमें साइकोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए. या किसी में हम ये देखते हैं अल्कोहल का उसे जो है वो यूज़ ज़्यादा करने लगता है, मिसयूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, स्मोकिंग करने लगते हैं बहुत छोटी सी एज में बच्चे. तो हमें इन चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए द चाइल्ड नीड साइकोलॉजिकल गाइडेंस. क्योंकि साइकोलॉजिकल गाइडेंस क्या है? इट डील्स विद द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड. व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइकोलॉजिकल गाइडेंस? Problem of adolescence should be handled, because as we all know that this stage of human life is very crucial. इस स्टेज पे अगर आपने बच्चे को संभाल लिया तो वो ज़िंदगी भर संभला रहेगा. अगर इस स्टेज पे उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ डिस्टर्ब रह जाएगी. रिमूवर ऑफ ड्रग्स यूज अमंग्स यूथ.
स्प्रेडिंग अवेयरनेस, गेटिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लाइफ। हम बच्चों को साइकोलॉजिकल गाइडेंस की इसलिए भी रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपको कैसे इसका प्रॉपर यूज़ करना है, आपको इसका मिसयूज़ नहीं करना, इस पे भी बच्चों को गाइडेंस देना। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप ट्रीटमेंट मेथड्स आर इंट्रोड्यूस्ड अमंग यूथ, प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट फॉर ओपन डिस्कशन। क्या होता है कि जब किसी को भी, बेशक वो स्टूडेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, कोई भी हैं, जब डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो सप्रेस्ड होने से उनकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उनकी पर्सनालिटी जो है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती है। तो उनकी बैलेंसिंग पर्सनालिटी के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग अचीवमेंट एंग्जाइटी, हाउ टू बी कंट्रोल्ड एग्रेशन, आपको इस पे भी साइकोलॉजिकल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत जल्दी आजकल बच्चे हैं, बड़े हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। नाउ हाउ टू कंट्रोल दीज इमोशंस ऑफ योर्स, इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। ओवरकमिंग डे ड्रीमिंग एंड मेक रियलिस्टिक चॉइसेस, coping with their social and cultural conditions. Now, what is the procedure of psychological guidance? Behavior modification technique. Now, what is behavior modification technique? इसमें आपको अगर आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, आपको इनकरेजमेंट दिया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है ताकि आप पुशअप हुएं और बहुत अच्छा आगे और करके दिखाएं। ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, नो नेगेटिव कमेंट्स। अगर आपको लग रहा है बच्चे ने कुछ गलत भी किया है तो टेल देम इन अ सजेस्टिव मोड कि बी बेटा प्लीज़ इम्प्रूव योर सेल्फ। तो क्या है, कहीं ना कहीं आपके कहने की जो जिस जिस फ्लो में आप बात करते हैं उसका बच्चे की पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसीज, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, shaping behavior, consequences, manipulations. Behavioral counseling is what in school system the psychologist may diagnose the problems of the students who are experiences some difficulties and low self. In the behavior counseling, focus remains on the child rather than the school generation journal problems. Like indiscipline, mild aggression can be solved with proper love and care. If some students who have some serious problems can be referred to the outside psychologist and special counselors for appropriate treatment centers, so the follow up work can be conducted to find out how effective was the counseling sessions are. Social guidance. Next is social guidance. Now, what social guidance is? It is assistance given to the students to develop variety of social characteristics such as values, life skills, interpersonal relationships. According to Brewer, social guidance is a facilitative which provides aids to pupil staff. In this way, social guidance provide assistance how to get satisfaction in social life. Basically, what social guidance is, this is that we all know that we are social animal. We can't live in isolation. We live in a society which is created by so many individuals. We are associated with so many people around us. हमारी फैमिली है, हमारा नेबरहुड है, हमारी कम्युनिटी है, हमारा वर्क प्लेस है, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इन सबके साथ हमें कैसे सोशल रिलेशंस, पॉजिटिव सोशल रिलेशंस बिल्डअप करना है, गुड रेपो बिल्डअप करना है, सोशल गाइडेंस इसमें हेल्प करता है। सोशल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज प्रेशर ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड फेसिंग चैलेंजेस विद टेक्नोलॉजिकल एरियाज। अब क्या होता है सोसाइटी में, हम कहते हैं कि वी शुड गो, वी शुड वॉक, वी शुड फ्लो विद द मूवमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा सोसाइटी चल रही है हमें सोसाइटी के फ्लो के साथ चलना है। अब वो कई बार आज की डेट में वी नीड दिस COVID-19 सिचुएशन, इट मेक्स एवरीबडी कंप्यूटर सेवी। और कई अभी भी ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर्स, जो टेक्नोलॉजी के साथ इतने फ्रेंडली नहीं हैं, इतने यूज टू नहीं हैं, तो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस जब वो टेक्नोलॉजी के साथ फेस करते हैं तो उन्हें लगता है वो सोसाइटी से पीछे हो गए हैं, वो पिछड़ गए हैं सोसाइटी से। तो इस टाइम पे सोशल गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ सोशल गाइडेंस? इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द सोशल एडजस्टमेंट। जैसे अभी हमने टेक्नोलॉजी की एग्जांपल लिया,
developing positive attitude and value for social relationship. It improves our social life. अगर आपको proper social guidance मिलेगी तो you become a very good member of your society, और आपके social relations, आपकी socialization जो है वो improve होगा. Provide help to accomplish social needs, need for interpersonal relationship, needs for group social status, need for self development, because as we say that we are social animal, we need society, we need people to be with us, और उसके लिए हमारा जो positive attitude है plays a very important role, and good rapport between our members of the society. Procedure of social guidance. Glasser developed a strategy known as classroom meeting model for solving social problems. Why? Because it reduced loneliness in students and promotes self-identity among students. Now, what is this classroom? जो अभी हमने बात किया है, व्हाट इज दिस क्लासरूम मॉडल? क्लासरूम मॉडल इज दैट कि कोई बच्चा आपकी क्लास में आपको लग रहा है ही इज़ अ स्लो लर्नर, और ही इज़ वेरी शाई इन नेचर, ही हेजिटेट्स, ही फील्स नर्वसनेस इन द क्लास. तो आप क्लासरूम मॉडल में एक सोशल ग्रुप बनाते हैं जिसमें रोल प्लेज, सिमुलेशन, आप जो है डिबेट करवाते हैं, ताकि जो वो बच्चा है वो भी क्लास के साथ आगे कोप अप करके उसमें अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को बता पाए. एस्टैब्लिशिंग अ क्लाइमेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसका इन्वॉल्वमेंट हो बच्चों के साथ. मेकिंग अ पर्सनल वैल्यू जजमेंट, मेक कमिटमेंट पब्लिकली. एक्सपोजिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कशन, alternate course of action and behavioral follow up. These are the references. So thank you so much. In today's video, what we have discussed what guidance is, what is the role of guidance in making balanced personality of an individual, progressive development of human, and what are the different types of guidance we required in our life: educational, social, and psychological. Educational guidance helps in choosing our educational profession, courses required for our educational development. Psychological guidance helps in making our behavior modifications, grooming our personality, enhancing our personality. And social guidance is what? It makes us socialized individual. It makes us more social with the members associated with us, with the people associated with us. It helps in the social development of individual. Thank you so much. Thank you very much.